आपके जो ट्रूथ का मेजरिंग स्टिक है, जो यार्ड स्टिक है आपका अब तक, जो इफ आई से साहिल अदीम साहब इज़ एक्स, आपने यू एस्पाउज इस्लामिक बिलीव्स, मुसलमान हैं आप क्लियरली, कुरान और हदीस को आप अपने गाइडिंग लाइट के तौर पर देखते हैं, सुन्ना को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एंड यू कॉल योरसेल्फ अ लिटरलिस्ट इन दैट, और आपने जो यहाँ पे ग्लीन की ये इन्फॉर्मेशन या ये आपने जहाँ से ये अखज़ किया ये आइडिया, वो आप पे शात या जो एक जूइश ट्रेडिशन है. सो no, I'm just saying that even they did that. I didn't take it from them. मैं बताता हूँ मैंने कहाँ से लिया हुआ है. हाँ जी, that's what I'm trying to get to. मैंने देखें, तो सेंट्रल डेफिनेशन ऑफ इस्लाम जो है ना, वो प्रोफेटिक नहीं है, वो सलफ़ी है, याद रखिएगा. सलफ़ सालेहीन से आ रही है. सेंट्रल डेफिनेशन को चैलेंज करने के लिए मुझे प्रोफेटिक आर्गूमेंट देना पड़ेगा. अदरवाइज व्हाई वुड दैट बी अदर देन द ओनली राइट थिंग? There has to be another way of looking at it, and if I have to present a case, I have to present it from directly the Prophet _sallam or Ali bin Abi Talib or Umar Khattab. ताकि credibility को No, not just credibility, but आपने अगर established norm को challenge करना, वो भी 12-13-100 साल का established norm है. It's not like all of them are, nauzubillah, dumb or. But at the same time, you don't call yourself a Salafi. Oh, I'm so not a Salafi. I mean, clearly, but at the same time, you particularly disdain आप रखते हैं इसके लिए कि यार सलफ़ी या वहाबी में नहीं हूँ. नहीं, वो पता क्या, जूरिस्प्रूडेंस लेवल के ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन है. पाकिस्तान में ना चूंकि इसका वही ऐसे I'm a literalist. असल में सलफ़ी का मतलब है मैं अपनी जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो सलफ़ सालेहीन से ले रहा हूँ. मैं अपनी जूरिस्प्रूडेंस शाफ़ई से लेता हूँ. I'll tell you why, because I know how to contextualize the weight of Shafi'i's argument. Even though मेरी अपनी टिल्ट, पर्सनल केमिकल टिल्ट हम्बल की तरफ थी, एंड माय टीचर जो कि उसको नोटिस कर लिया था उन्होंने. Who is mentor? आपके टीचर्स, आपके mentors, people don't. I feel like if I want to get to know Sahil Adeem, I want to know उनके mentors कौन, उनके teachers कौन. मेरे मुफ्ती इब्राहिम साहब is like the guy who actually raised me up. Ibrahim Saab, yeah, but right. he's a Jordanian. In Canada, and if I had to read up about him or read something he's published, or because हम लोग भी source code से रहना चाहते हैं. So people who've created Sahil Adeem. But source code में मैं फिक्र. Yeah. No, I don't mean source code the academy. I mean the source code. Sorry, wordplay था थोड़ा सा शरारती. I'll tell you a few people who are widely published. For example, मेरी physics की टीचर जो हैं, सिस्टर मार्था जो हैं, उनकी भी कोई किताब तो नहीं पब्लिश हुई. No, but I know physics. I understand what you mean. What I'm saying is, if my teacher are contradicting with any sort of classical norm, तो फिर तो I have to prove it कि भाई यहाँ पब्लिश हुआ मेरा टीचर. मैं तो शाफई को propel कर रहा हूँ jurisprudence में. You need to read शाफई, not अब मुफ्ती इब्राहिम. Right. You know what I'm saying? If I'm saying नहीं शाफई गलत है, तो I'll have to prove it. If somebody says नहीं शाफई वाला जो फिक्स साहिल साहब फॉलो कर रहे हैं गलत है, then I will like सर शाफई का लिखा है. With regards to fiqh, that's fine, but where do you get? इसके अलावा सल्फी नहीं होता. जो academic tradition है आपका in regards to तफसीर या हदीस की interpretation में, अब do you कोई classical sources that you rely on? Linguistics के एतबार से, is there a particular expert that you rely on, the way they've translated the Quran? Because a lot of people complain about this कि you are translate the Quran. Exactly. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मुकदमा solidify होगा if you are able. I'll tell you. See, that's why I'm saying I'm a literalist. आप अगर उमर खत्ताब कहते हैं कि जुल्करनैन एक फरिश्ता था, it's not. But I didn't say that. I'm using it as an argument कि कुरान पाक की आयत कह रही है कि वो आसमानों में गया है, और उमर खत्ताब कह रहे हैं वो फरिश्ता था. You need to understand. I'm actually giving you supporting evidence of the literal meaning of the ayah. I don't want to annoy you, but people would say इसकी source क्या है? How do they check this up? क्या है? उमर खत्ताब ने क्या? Yes. ये मैंने थोड़े मेरे look at Bukhari और Muslim. या क्लासिकल तबरानी उठाएं. अली बिन अबी तालिब ने कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम का सीमन मट्टी में गिरा, उधर से याजूज माजूज निकले. I didn't write this. That's not a theory. I'm getting this as evidence and presenting from classical sources. Yeah, as classical as it gets. Okay. Right. So if I'm using anyone in my to back up my case, I'm going to use nothing but tabein at the least. Otherwise, सारे तो साहबा मेरी साइड पे खड़े हैं. For example, शेख इमरान कहते हैं कि वो शेख इमरान नजर हुसैन. Yeah. He says कि याजूज माजूज जो हैं वो Albanian Jews हैं या Armenian Jews, sorry. Well, you gotta prove that because that's not written anywhere. Classical छोड़े, modern text उठा के देख लें. That's just you. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने एक fanatic claim किया ना, you need to prove it. You're saying, I don't. उमर खत्ताब कह रहे हैं फरिश्ता है, ठीक है, जुल्करनैन.
यू नीड टू प्रूव कि जुल्कर नैन एक आदमी है, अदरवाइज मेरे पास उमर इब्न खत्ताब खड़े हैं जो कह रहे हैं कि आदमी नहीं है. You need to prove कि he is Darius or Cyrus or Alexander or whoever. Yeah, Cyrus पे तो पता नहीं, I don't know who came up with this and everyone's following this little, you know. उस जमाने में at the time when this idea came out, ईरान में excavations हो रही थी, शाह ईरान करवा रहा था. I know. You know, I'm just figuratively metaphorically. इसकी sources नहीं कोई. If anything, Cyrus has more not to do with Zulkarnain than to do with Zulkarnain. You know, type pro Jew किस्म का एक फिगर आपने उठा के, you know, Jewish बस उसके डालना था कहीं ना कहीं पे. So the question is, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जुल्करनैन फरिश्ता था. What I'm saying is the possibility of him traveling is backed up by a connotation from a sahabi, another sahabi, Ali bin Abi Talib, that he had the power to fly over the clouds. अब ये कौन सा इंसान है, समझ इंसान है, उसको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, दिस इज नॉट मैटर फिजिकल, दिस इज एज लिटरल एज इट गेट्स. याजूज माजूज सीमन से निकल रहे हैं, मट्टी से निकल रहे हैं. वेल यू नो, इफ आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन के ओके यू नो व्हाट, इफ दैट इज ट्रू देन और भी बड़ा कुछ होना चाहिए था. वेल नो, आई एम जस्ट स्टॉपिंग द केस राइट हियर कि बाकी की सब चीजें ऑटोमेटिकली एक खास किस्म के पजल में खुद ही फिट हो रही हैं. आपने अगर चैलेंज करना है तो फिर आप सोच लिखें. You have to as a lay person, complete lay person, not an alim, not anything. आम कारोबार करता हूँ, नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, consume a lot of data, modern internet using इंसान. आपने अब दो तरफ से अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया है. द ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस थिंकिंग इन मी, जो मैंने अपने घर में, मदरसे में, मस्जिद में, कहीं भी सीखी हो, किताबों में, उलमा से सीखी हो, मजहबी वाइजीन से सीखी हो, एक अब आपने उस तरफ से टारगेटिंग ले लिया. आई एम नॉट सेइंग यू कैन टेक द हीट, बट एज समबडी हु वुड लाइक टू सी यू प्रेजेंट योर केस इन अ मोर. So ironic, we talking about Surah Kahf and everyone getting against you. That is ironic story. Yeah, it is ironic. But yeah. On the other end, it's the other end, please. मैं आपका केस को सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सपाउंड ऑन करें, because I feel like usually नहीं डिस्कस होता है. I'll ask you a simple question and then you'll be on my side rather than these two spectrum. The other one is the modernist sort of materialist philosophy जो साइंस की हमारी तालीम है, बज़ाहिर हम एक आंख से देखने वाले हो चुके हैं. अगर मैं मेटाफोर में बात करूँ, even that literative end would be like, पावे मैं इंसेप्शन आके देख के आऊँ या इंटरस्टेलर देख के आऊँ, वो मैं बिलीव कर लूँगा गॉपल्डी कुक 2 घंटे में. बट बाहर आके जब आप मुझे ये कहेंगे ना, तो आई विल थिंक यार ये MCU टाइप, अवेंजर्स टाइप बातें कर रहे हैं कि एलियंस हैं, स्पेस है. You have to admit that these are the two spectrums of the kind of thinking that you're dealing with. Well, right now they are. I'll tell you why. Because you know, 50 years ago, these were not the same spectrums. Sure. हमें as a human being एक specific amnesia है, मानना पड़ेगा. Alien का concept एक controversy है अब. 70 साल पहले लोग कहते थे मैं एलियन से मिला हूँ. It was not a controversy. मिलना तो दूर की बात, आप खाली ने देखा भी हो तो you cannot say anything because you're a cook. You need to understand that. अभी मैं वही क्वेश्चन करता हूँ. दज्जाल का कॉन्सेप्ट मेटाफिजिकल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नबी इस्लाम को एक बच्चे के बारे में बताया और he went himself to see. साफ इब्न सयाद. या अब फिजिकल तो है. दूसरी तरफ तमीमुद्दारी दज्जाल से मिल आए, अभी तो उसने पैदा होना है. तो ये गैब का कॉन्सेप्ट होता तो मैं कहता तमीमुद्दारी कैसे मिला है, और समझ लो गैब में मिला है और इंसान ही मिल के आया ना. अब इसमें मैं एक और शरारत करूंगा. जरूर शरारतें कीजिएगा, मैं चारों सारी शरारतें हूं. मैं ये चाह रहा हूं कि आपको, आई एम नॉट कमिंग अप विद एनीथिंग बट कॉमन सेंस सॉल्यूशंस. नो क्वेश्चंस कि इफ दज्जाल इज अबाउट, व्हिच आई बिलीव, मुझे पता है हदीस का कि अब किस तरीके से उसने पैदा होना है, लाइक इन द हाउस होल्ड इज डिस्क्राइब्ड. राइट. इसका मतलब है कि देयर इज अ बिग पीस ऑफ द पजल मिसिंग हियर. आई एम नॉट गोना से, जो ऑर्थोडॉक्सी पता है कहती है, और सर इस बारे में तो बहस ही नहीं करनी चाहिए, इसी बारे में तो बहस करने का हुक्म है, और किस बारे में बहस करने का हुक्म है. अल्लाह ताला कुरान पाक में बहस को, तफक्कर को, तदब्बर को, अक्ल को एनफोर्स मैंडेटरी कर रहे हैं. ये निशानियां तो मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम तफक्कर कर सको. यू डू नॉट थिंक, और आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं एंड स्टिल यू डू नॉट थिंक. और हमें क्या मना कर रहे हैं, तबाज़माई ना करो, गैब की बात. कौन सी गैब की बात है? गैब की बातें पता है हमें. तब एम्ब्रियोलॉजी, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा हमने इंसान को 3 माँ के पेट में 3 परतों में पैदा किया. ये गैब की बात नहीं थी, या इससे ज़्यादा गैब की क्या बात है?
कि जिक्र क्या है, अलग क्या है, ये गैब की, मगर उसके ऊपर हमने चूंकि बायोलॉजिस्ट ने तबाजमाई कर दिया तो हम कहते हैं वो अल्लाह की निशानी, और ये भी अल्लाह की निशानी है। उधर अगर कोई गोरा तबाजमाई करके साइंस में ले आता है और आपकी बेबी का या माँ का इलाज हो जाता है, तब तो तबाजमाई काम आ गई। और जब मैं तबाजमाई कर रहा हूँ, जो कि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है, बारिश कैसे होती नजर आ रहा है मैं अभी बुखारात, ये भी तो गैब का इल्म है। उसकी अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक कहते दिया, वो फिजिक्स वालों ने कर दी, मीटियोलॉजिस्ट ने कर दी, तो वो क्या बात है, देखा हमने कुरान में पहले ही अल्लाह ताला ने कहा था, तो कुरान पाक में सब कुछ ही अल्लाह ने पहले कहा। से लिसन, आई बिलीव एंड आई कैन प्रूव इट टू यू दैट कुरान इज अ बुक दैट इज मिमिकिंग द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। Quran is literally mimicking the reality of the universe. We just don't look at it like this. हमने वो 2-dimensional एक पिक्चर प्लॉट कर ली हुई है, क्योंकि हमारी पिछली कुछ नस्लें नहीं एक्सपोज थी सबके। उनकी फिजिक्स की किताब एक आम बंदे ने लिखी हुई है जो कुछ सालों में अल्लाह की कसम गलत प्रूव हो जाएगी, सुम्मा अल्लाह की कसम गलत प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो बेचारे और कहते भी हैं ना, ये भी नहीं कहते एरोगेंट, वो कहते हैं भाई दिस इज टिल नाउ अभी तक वर्किंग नॉलेज है, हम्बल इनफ टू से दैट। वो उसको अब नहीं रहे बदमाश हो गए। वी कैन डिबेट इन द रियल स्कॉलर्स टुडे। वो एक मैन मेड किताब को किस वैल्यू पे लेके गए हुए हैं कि दे एक्चुअली वांट टू डाइव और व्हाटएवर दैट वन स्टेप दैट दे माइट वांट टू टेक, और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और व्हाटएवर। और हमारे पास असल में कायनात की सबसे बड़ी किताब है, और हम उसको डी वैल्यू करने के पीछे इसको बस इसको इस्तेमाल नहीं करना हमने। वो 2 नंबर किताबें इस्तेमाल करके हम पे राज कर रहे हैं, और हम 1 नंबर किताब टेंजेंट आप इनिशियल बात पे कर रहे हैं। तो a much easier solution that the conventional ulama or orthodoxy would present is के जो एक हदीस है तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु की नरेशन, वो स्टैंड अलोन नरेशन है, और जो एक मजमुआ है नरेशंस का जिसमें दजाल पैदा होएगा, तो वो तो इस तरह रिजॉल्व भी कर लेते हैं उसको। People do that. It's not a standalone हदीस ना, मैं आपको 10 सुना देता हूँ। नहीं तमीम देखें, 10 सुनाता हूँ ऐसी जो आप कहेंगे सर ये वाली बात तो कहानी बदलेगी। नहीं, बट स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ एक कॉमन रेजोल्यूशन ये होती है कि हज़रत तमीम दारी वाली हदीस डिफरेंट चेन्स ऑफ नरेशन से आती है। मैं एज लाइक द मोर ले पर्सन इन दिस कॉन्वर्सेशन ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई कर दूं कि जिस हदीस की हम बात कर रहे हैं, 2 कॉन्ट्रडिक्टरी सीमिंगली हदीस हैं। एक हदीस कहती है कि दजाल पैदा होगा, एंड देन देयर इज अनदर हदीस जिसके अंदर कुछ सहाबा दजाल से मिल के आते हैं। सर ये कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों है? सीमिंगली Sir, it's like seemingly for any guy who has absolutely no sense of the interdimensional realms. Now you're being mean, ठीक है? Everybody's not seen the MCU films, Avengers 1, 2, 3. Avengers तो भी आई हैं sir. But like, you know what? I'll science fiction allows. I'll break a big news. I've never seen an Avengers movie. No, I agree with you. You know? But science fiction, मुराद मेरा मैं शरारत करता, but science fiction allows people to have an abstract kind of thinking in terms of reality. It does. Abstract? No, hold on. Science गई बाढ़ में मेरी तरफ से। Science fiction. साइंस फिक्शन छोड़े, साइंस कई बार में मेरी तरफ से मैं आपको बताता हूं। इंटरडिमेंशनल ट्रैवल इंसानों का, इंटरडिमेंशनल कम्युनिकेशन, ट्रैजेक्टरी, ये सब अल्लाह और उसके रसूल ने हमें सिखाई है लिटरली। आपको अभी तो कह रहा हूँ स्टैंड अलोन की वजह से मेरे तरह कान खड़े होंगे। स्टैंड अलोन हदीस नहीं है। नबी अस्सलाम अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ चल रहे हैं, और आगे अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं द बिगेस्ट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। इट्स नॉट लाइक एक लेमैन, एक बद्दू ने देखा और उसने अपनी इंटरप्रिटेशन की। अब्दुल्ला बिन मसूद इज लिटरल। नबी अस्सलाम की हदीस क्या है कि काले मलबूसात में दराज का एक ग्रोह आ गया अचानक सहरा में। नबी अस्सलाम ने लकीर खींच दी और कहा कि ओ अब्दुल्ला, मैं अभी जाऊँगा इनके तेरे सामने इनके अंदर, और फिर मैं गायब हो जाऊँगा। एंड यू विल हैव द अर्ज टू गो एंड कम एंड फाइंड मी, डू नॉट फॉलो योर अर्ज। ये इस लाइन को क्रॉस ना करें। एंड अब्दुल्ला बिन मसूद को नबी अस्सलाम ने आगे कहा, अगर तू आया तो क़यामत तक तू मुझे ढूंढता रहेगा, तू मुझे मिल नहीं सकेगा। ठीक है? अंडरस्टैंड व्हाई एनी ह्यूमन बीइंग, छोड़ मुसलमान, एनी, अगर ये किसी हिंदुइज्म के रामा की भी कहानी होती ना, तो मैं सवाल दूर करता कि होल्ड ऑन, इसमें तो देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स टू ब्रेक हियर। Where again? Sorry to ruin the effect of the story, but where is this narrated? Oh my God, this is a mustanad hadith. This is all right. Yeah. Easily you can Google this. Audience sun rahi hai. Yeah. All right. फिर what should they write? What should they search for? Abdullah bin Masood. Really? Yes, I'm sorry. Oh my gosh. You got to break it down. There's लाखों लोग सुनते हैं आपको साहिल भाई. You have to be listen, more specific in helping them. Search up
the kind of things that they're searching up right now, ये तो बहुत ही आसान है इंशाल्लाह। वो वाला काम छोड़ देना जिस पे वो सर्चेस कर रहे हैं, तो ये खुद ही अल्लाह प्रेजेंट कर देगा। ये मेटाफिजिकल बात की मैंने, ठीक है पहली।